नमस्कार, हलचल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फगवाड़ा गोराया नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, नौजवानों की मौत, एक गंभीर घायल। अमृतसर ग्रामीण पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने विस्फोटक सामग्री की स्मगलिंग की कोशिश को किया नाकाम, 2 ग्रेनेड सहित एक आरोपी काबू। मोगा के जीरा रोड पर मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवानों ने मजदूरों पर चलाई अंधाधुंध गोलियां, गोली लगने से 2 मजदूर हुए गंभीर घायल। और अब हलचल विस्तार से। फगवाड़ा से गोराया नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार टोयोटा कार बेकाबू होकर सड़क पर पलटी खाते हुए दूसरी सड़क पर जा गिरी और टाटा 407 से टकरा गई। इस हादसे में जहां कार के परखचे उड़ गए, वहीं टाटा 407 गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि हादसे में कार सवार तीनों नौजवानों की मौत हो गई। वहीं टाटा 407 चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल गाड़ी चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम पहुंची और शवों को कब्जे में लिया। भाजी मामला इदा वा, ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਇਧਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ PB10 BS 5210। ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਔਰ ਉੱਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਈ, ਗੱਡੀ ਉੱਡਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭਾਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ, ਆ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੱਕ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਇਹ ਭਾਜੀ? ਮੇਰੇ ਸਾਥ 3 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ। ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਭਾਜੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਰਾਹਗੀਰ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਫਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਆ। ਕੋਈ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਣ ਕੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਆ। ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ ਗੱਡੀ? ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ? ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਇਹ ਫਲੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਲੋਰ ਮੇਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜੀ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 30-35 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 25-22 ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਸ। 25-20 22 ਦੀ ਹੈ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਾਸਟ ਆਏ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ। अमृतसर बॉर्डर रेंज ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए विस्फोटक सामग्री की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि अमृतसर ग्रामीण पुलिस और केंद्रीय एजेंसी द्वारा संयुक्त तौर पर एक योजनाबद्ध ढंग और इंटेलिजेंस आधारित कार्रवाई के दौरान सीमा पार से भारत में विस्फोटक सामग्री भेजने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान 2 हैंड ग्रेनेड बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान सुखमनप्रीत सिंह निवासी गांव चक मिस्री खानी के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि इस तस्करों के तार पाकिस्तान आधारित हैंडलर से जुड़े हुए हैं, जिनका इरादा भारत की अमन शांति को भंग करना है। प्राथमिक पूछताछ के दौरान और कई साजिशकर्ताओं की भूमिका भी सामने आई है। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए शामिल व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीमों गठित कर लगातार छापामारी की जा रही है। बड़ा कोऑर्डिनेटेड ते इंटैलीजेंस लैड ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਹਿਲ ਮੀਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ISI ਸਪਾਂਸਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਚੱਕ ਮਿਸ਼ਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਗੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 2 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ P86 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੇਡ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਧਰਪਕੜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ सम्मुख ਤੁਹਾਨੂੰ अपडेट दे देंगे। मोगा के जीरा रोड पर अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया है। इस घटना में 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिस कारण 2 मजदूरों के पैरों में गोली लगने से वे घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक घायल मजदूर बिहार के रहने वाले हैं, जो कि मोगा की एक फैक्ट्री में काम करते थे। घायलों की नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पल्लेदारी का काम करने वाले कुछ मजदूर खाना खाने के बाद अपने घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक 3 बाइक सवार नौजवान वहां पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के उनके द्वारा मजदूरों पर गोलियां चला दी गई। घायलों की पहचान अशोक कुमार और सुबोध के तौर पर हुई है। मौके पर मौजूद दुकानदारों ने बताया कि हमलावर द्वारा जाते समय 4 हवाई फायर भी किए गए, जिसके बाद इलाके में अफरा दफरी मच गई। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी जो है मौके पर पहुंच गई है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की जांच पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। इस दौरान पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। हमलावरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? अशोक कुमार माझी। क्या हुआ है? बाबूजी काम करने गए थे दूसरे सेलर में। जब 11 बजे रोटी खाने का समय था ना, तो उधर से रिटर्न आ रहे थे रोटी खाने, तो रास्ते में जब आधे रास्ता पड़ता दोनों सेलर का, आधे रास्ते में आए तो दुकान एक था, वहां पर दुकान के सामने ही हम अपना रहा था कि आ रहे थे, इधर से गया वो, फिर गोली चला दिया उसको। कौन था वो तो नहीं पहचाने उसको। किस पे आए थे? अब किस पर आया था नहीं आया था तो हम नहीं मालूम, तो आधा के चल रहे थे। पैदल थे? हाँ पैदल थे, वो मोटरसाइकिल के साथ 3 आदमी थे। वो 3 थे? हाँ मोटरसाइकिल पर हाँ। वो बंधे हुए थे? हाँ तो पहचान नहीं है इनको? नहीं पहचान नहीं है। क्या गोली किस लिए चलाई? कुछ लूटपाट करने की? तो मालूम नहीं क्या लिए, हम तो अपना राधा करा रहे थे, मतलब उसके बाद कोई हुआ है उससे बातें नहीं हमको कुछ हुआ है। तुम्हारी कहाँ पे लगी? हाँ? कहाँ पे लगी तुम्हारे? क्या गोली चीज? कहाँ पे लगी तुम्हारे? घुटने में लगाई। और दूसरा? हाँ जी, 2 पेशेंट आए हैं, एक का नाम है अशोक है, एक का सुबोध है। अशोक पेशेंट के घुटने पे गोली चली हुई है 2 जगह, बाकी एक्सरे रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। और एक दूसरा पेशेंट है सुबोध, उसकी ज़्यादा इंजरी नहीं है, पैर पे है, दोनों पेशेंट स्टेबल है, वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ओनली गन शॉट के वो है, तो उनके जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो कर दिया है। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, एक्सरे रिपोर्ट करवा रहे हैं, उसके बाद देखेंगे। सब कुछ बताया उन्होंने कैसे हुआ है? नहीं, अभी तक कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई, ओनली बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि कहाँ पे गोली चली है। जो हाँ, इनको फिर फरीदकोट रेफर करेंगे एक्सरे करवा के। हालत कैसे हुई? पेशेंट दोनों स्टेबल है, तो पेशेंट ने बेसिक डिटेल्स दी है। जीरा रोड पे उनके साथ गनशॉट हुआ है, पेशेंट इधर सिविल हॉस्पिटल मोगा है और इन्वेस्टिगेशन करवा के फिर इनको फर्दर फरीदकोट रेफर करेंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ BS ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਰੰਜਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ लगा सके। डेरा ब्यास के प्रमुख एवं समाज सुधारक गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने मंगलवार को फिरोजपुर में गवर्नर पंजाब गुलाब चंद कटारिया के साथ नशों के विरुद्ध रैली में पैदल चलकर समाज को नशों के विरुद्ध जागरूक किया। इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी इस यात्रा में शामिल थे। इस पैदल यात्रा में अश्विनी शर्मा के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे।
जहां यात्रा के दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, वहीं युवाओं और बच्चों ने भी बड़ी संख्या में इस यात्रा में हिस्सा लिया। ये यात्रा सारागढ़ी गुरुद्वारा साहिब से शुरू की गई। राज्यपाल द्वारा इस यात्रा में शामिल होने पर डेरा ब्यास मुखी का धन्यवाद किया गया और आम जनता को इस यात्रा में शामिल होने की अपील भी की गई। फिरोजपुर में नशा मुक्त रैली के दौरान पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब को नशा मुक्त करने का संदेश दिया। इससे पहले राष्ट्रीय गान हुआ। इस मौके पर राज्यपाल कटारिया ने कहा कि पंजाब नशे से तभी मुक्त हो सकता है जब सभी सुरक्षा एजेंसियां एवं समाज सेवी एकजुट होकर इसके खिलाफ काम करें। मैंने 31 जुलाई 2024 से यहाँ कार्य ग्रहण किया और जब मैं बॉर्डर के ज़िले में गया तो मुझे कुछ माताएं बहनों की ये पीड़ा सुनने को मिली कि आप कुछ कर सको तो करो, कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में जैसा लिखा होगा, लेकिन हमारे बच्चों को नशे से बचाओ। तो मेरे मन में लगा कि वास्तव में इनकी जो मन की पीड़ा है वो इनकी आंखों में झलक रही है। इसके लिए मैं यहाँ का राज्यपाल बना हूँ, यहाँ का जनसेवक बना हूँ, तो मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। और इसलिए मैंने दिसंबर में ही खुशवंत सिंह जी के साथ, उनकी पद यात्रा थी, वो फौजा सिंह जी के साथ, और मैंने शुरू की थी। 2 दिन में उनके साथ रहा। उसके बाद मैंने स्वयं ने एक तरह से 3 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक 6 दिन की लगातार पैदल यात्रा की, गुरु नानक देव के यहाँ से लेकर अमृतसर तक। उसके बाद मैंने स्वयं एक तरह से चंडीगढ़ प्रॉपर में सभी समाज, सभी पार्टियाँ, सभी दलों को लेकर के, दोनों मुख्यमंत्री थे, दोनों राज्यपाल थे, सेना के अफसर थे, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी चंडीगढ़ में हैं वो सब भी साथ चल कर के, शिक्षण संस्थाएं, यूनिवर्सिटी, सब ने मिल कर के हमने लगभग तिरंगा पार्क में 5000 से भी अधिक लोगों को उससे जोड़ने का प्रयास किया। मैं सोचता हूं कि केवल और केवल कानून के द्वारा इस नशे को यहाँ से भगाना इतना आसान नहीं है। जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, जनता इससे जुड़ेगी नहीं, बच्चे इससे जुड़ेंगे नहीं, और इस अभियान को सफल करने में जब वो प्रयास करेंगे तब सफलता मिलेगी। और ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत जलंधर के गुरु नानकपुरा में स्पेशल डीजीपी गुरप्रीत देओ, पुलिस कमिश्नर तनप्रीत कौर, ज्वाइंट कमिश्नर संदीप शर्मा सहित 100 से अधिक पुलिस अधिकारियों व कर्मियों ने दबिश दी। इस दौरान जहां संदिग्ध घरों की तलाशी ली गई, वहीं संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर उनसे पूछताछ भी की गई। मामले की जानकारी देते हुए स्पेशल डीजीपी गुरप्रीत देओ ने कहा कि गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पहले जनवरी में मुहिम चलाई गई थी, वहीं अब ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत गुरु नानकपुरा में कार्रवाई की गई है। इस दौरान उन्होंने कुल 100 जगहों पर रेड की गई। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ आरोपियों से पूछताछ के दौरान पिछले केसों को ट्रेस भी किया गया। उन्होंने कहा कि लोग भी अपराध को रोकने के लिए जागरूक हो रहे हैं, पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सूचनाएं दे रहे हैं। स्पेशल डीजीपी ने कहा कि जिस तरह नशे के खिलाफ मुहिम बताकर तस्करों पर नकेल कसी गई है, उसी तरह अब गैंगस्टरों पर नकेल कसी जा रही है। मैं इत्थे आई हाँ जी, प्रहार 2 करके स्पेशल कैंपेन शुरू की गई है गैंगस्टरां ते वार दे तहत, और ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਲਾਨਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ और इंटर डिस्ट्रिक्ट सीलिंग की गई है, और रेडिंग पार्टीज़ बना के रेड्स कीतियां गई ने, और उस श्रृंखला विच जिहड़ी रेड्स कीतियां अज ते कल विच तकरीबन 100 रेड्स कीतियां गईयां सारे 14 पुलिस स्टेशनस दे SHOs वालों, और उहदे विच 51 जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं वो अरेस्ट होए हैं। कई नाकियां ते जिहड़े अकस्मात चैकिंग नाल 1 या 2 बंदे अरेस्ट होए, जिहदे तो इन्हां दे पिछले केसेस भी ट्रेस हो गए ने। सो ये एक अटैम्प्ट है पंजाब पुलिस दा जो कि अगे भी जारी रहेगा, पर इहदा मतलब है कि 3 दिनां दा एक फोकस्ड अटेंशन हो जाता है क्रिमिनल्स ते,
ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਕਰੇਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ भी मिल सकते हैं। थैंक यू। जालंधर शहर के लतीफपुरा में 3 साल बाद माहौल फिर तनावपूर्ण बन गया है। सोमवार और मंगलवार की रात 2:30 बजे पुलिस बल ने कब्जाधारियों को उठा दिया, उनके टेंट हटा दिए। लगभग 7 घंटे चली कार्रवाई के बाद पुलिस ने कब्जा लेकर जमीन खाली करवाई, जिसके बाद प्रशासन ने पुलिस के साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए टेंट हटाकर मलबा उठाना शुरू कर दिया। बता दें कि यहाँ पर 100 परिवारों के घरों को 2022 में ही प्रशासन ने खाली करवा लिया था। कुछ घरों को तोड़ा था, जिसके बाद लोग टेंट लगाकर इस जमीन पर बैठे थे। 2022 में लोगों ने बड़े स्तर पर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया था। बाहर से विरोध करने के लिए लोग ना आ सके, इसके लिए पुलिस ने लतीफपुरा की कब्जे वाली जगह के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी और किसी को भी आने की इजाज़त नहीं दी गई। अमृतसर पुलिस को ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत बड़ी कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन के दौरान अमृतसर पुलिस ने ड्रग तस्करी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर चल रहे चेकिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने मीडिया को बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान 5 मुख्य आरोपियों को 6 मॉडर्न पिस्तौल ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़े क्रिमिनल एलिमेंट्स, उनके साथियों, रिश्तेदारों और क्राइम में मदद करने वाले लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले मामलों की जांच और पूछताछ के दौरान यहां पता चला है कि कई ड्रग तस्कर और अपराधी ट्रेन यात्रा के जरिए अपनी गतिविधियां कर रहे थे। इसलिए जीआरपी और आरपीएफ की मदद से रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। चेकिंग के दौरान शक के घेरे में घूम रहे लोगों को वेरिफिकेशन किया गया, लबारिश सामान की चेकिंग की गई और स्टेशन की पार्किंग से खड़ी गाड़ियों पर खास नजर रखी गई। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस कैंपेन का मकसद लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना और अपराधियों में डर पैदा करना है। अमृतसर पुलिस भविष्य में भी ऐसे ऑपरेशन जारी रहेगी। बेसिकली ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਏਮਲੈਸਲੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਨਕਲੇਮਡ ਬੈਗੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਬੋਟਾਜ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟਾਜ ਟੀਮ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਰਾਇਟ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਹੈ, जीआरपी ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ, ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਵਨੇਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਜੈਨੂਇਨ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੇਫ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈਆਂ, किन्ने बंदे फड़े गए, वो सारी असी शाम को प्रैस नोट रिलीज करा। बेल मिलने के बाद श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया चंडीगढ़ से रवाना हुए। रास्ते में कई जगहों पर अकाली वर्करों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जैसे ही बिक्रम सिंह मजीठिया जंडियाला गुरु पहुंचे, वहां मौजूद अकाली वर्करों में एक अलग ही तरह का जोश और उत्साह देखने को मिला। अकाली दल के वर्करों ने पटाखे फोड़कर और लड्डू बांटकर जश्न मनाया। इस मौके पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रविंदर पाल सिंह कुक्कू, हल्का इंचार्ज संदीप सिंह, AR पार्षद परीक्षित शर्मा, पूर्व पार्षद कुलवंत सिंह मल्होत्रा,
पार्षदप्ती राकेश कुमार, गोल्डी शर्मा, विनोद शर्मा, दीपक शर्मा, मोहित शर्मा, देसराज, रंजीत सिंह, विजय कुमार, लखा सिंह मालोवाल सहित सैकड़े कार्यकर्ताओं ने विक्रम सिंह मजीठिया को सिरोपा भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। श्री सनातन धर्म मंदिर प्रीतनगर सोडल रोड में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा को विश्राम दिया गया। कथावाचक पंडित वेंकटेश महाराज, वैनी माधवी, त्रिकूट धाम वालों ने अमृत वचनों की वर्षा करते हुए बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से मानव का कल्याण संभव है। उन्होंने आगे बताया कि मानव संसार में ना तो खाली हाथ आता है और ना ही खाली हाथ जाएगा। वे अपना भाग्य लेकर आया है और अपने कर्म लेकर जाएगा, इसलिए ऐसे कर्म करें कि दोबारा इस धरती पर आना ना पड़े और जीव आत्मा को संसार में आने जाने के बंधन से मुक्ति मिल जाए। कथा के दौरान पंडित वेंकटेश महाराज ने प्रभु भजनों का गुणगान कर भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस मौके पर पूर्व CPS केडी भंडारी ने विशेष तौर पर शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कथावाचक पंडित वेंकटेश महाराज ने आशीर्वाद स्वरूप केडी भंडारी को व्यासपीठ से राधा कृष्ण का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। कथा के अंत में श्रीमद् भगवत कथा की आरती के बाद भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर वरिंदर कुमार गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, भूषण कुमार गुप्ता, विजय कुमार ब्रह्मी, अशोक शर्मा, मोहिंदर पाल सहित प्रभु भक्तजन शामिल थे। मैं कामत जी को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चित्रकूट में वास। श्री राधिके एक मेरी ओर निहार, प्रणव पवन कुमार कलगन भाव ज्ञान घन जश दयागार श्री राम सरचार। सब लोगों का मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। आप कार्यकर्ता लक्की ओबराय अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास गुरुद्वारा 9वीं पातशाही GTB नगर जलंधर में की गई। इस दौरान रागी जथों ने विरागमय कीर्तन कर स्वर्गीय लक्की ओबराय की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व सांसद सुशील कुमार रिंकू, कीमती भगत, पूर्व विधायक राजिंदर बेरी, मेयर वनीत दीप, राजकुमार राजू, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, पूर्व CPS KG भंडारी, भाजपा देहाती प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, आप नेता दीपक बाली, पवन कुमार टीनू, पार्षद शहरी चड्डा, राजविंदर कौर थियाड़ा, पार्षद शारदा, कुलदीप ओबराय, तरुणदीप सनी, आत्म प्रकाश सिंह बबलू, शशि शर्मा, पार्षद विपिन कुमार, इंद्रजीत सोनू, मुकेश सेठी, सुरिंदर बापा, मंगल सिंह बसी, हरजाप सिंह संदा, राजीव दुग्गल, पार्षद हरचरण कौर, पार्षद हरजिंदर सिंह लाडा, गुरचरणजीत सिंह चन्नी, अंगद दत्ता, विपिन सब्रवाल, शशि शर्मा, चेतन हांडा, काली थापड़ और परिवारक सदस्यों में बेटा सहज सिंह, बेटी जसलीन, खुशी सहित सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय लक्की ओबराय को श्रद्धांजलि भेंट की। व्हाइट डायमंड के मालिक और पंजाब कांग्रेस के महासचिव मनु वड़िंग गगत दिवस अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे। उनकी आत्मिक शांति हेतु शोक सभा का आयोजन शार्ट फुटी रोड स्थित व्हाइट डायमंड रिसोर्ट में किया गया। इस मौके पर पंडित जी ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय मनु वड़िंग की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस दौरान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के
साधुओं ने विरागमयी कीर्तन कर स्वर्गीय मनु वड़िंग को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके पर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, मेयर वनीत दीर, विधायक बाबा हैनरी, जलंधर सेंट्रल हल्का इंचार्ज नितिन कोहली, पूर्व सांसद सुशील रिंकू, पूर्व पार्षद सुनीता रिंकू, पूर्व सांसद महेंद्र सिंह केपी, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, स्वामी सजनानंद, सीनियर डिप्टी मेयर बलवीर सिंह बिट्टू, डिप्टी मेयर मलकीत सिंह, पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़, पूर्व विधायक राजकुमार वेरका, पार्षद मनजीत सिंह टीटू, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक राजिंदर बेरी, पूर्व CPSK डी बंजारी, राजीव दुग्गल, पार्षद बलराज ठाकुर, पार्षद जसलीन सेठी, पार्षद शेरी चड्डा, पार्षद बंटी नीलकंठ, रविंदर दीर, पार्षद पति सौरभ सेठ, भाजपा नेता मनोज अग्रवाल, भाजपा नेता सागर जॉर्ज, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, सुरेश धवन, हरविंदर सिंह पप्पू, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन तजिंदर सिंह बिट्टू, पंजाबी फिल्म कलाकार बीनो ढिल्लो, राजकुमार राजू, ऑल इंडिया एंटी करप्शन दिल्ली से राजिंदर भंडारी, पार्षद राजकुमार राजू, मोन्टू जुनेजा, SSO मनदीप सिंह, सोमरसेट स्कूल से महेंद्र सिंह, सुरिंदर चौधरी, SSP राजिंदर सिंह, नवजोत दहिया, वरुण मदान, जसविंदर सिंह, जगदीश सिंह, सुरिंदर कौर, अश्विनी जंगराल, हेमंत मसीह, सुदेश भगत, कमल नागर और परिवारक सदस्यों में पत्नी परवीना, पुत्र आर्यन, पुत्री सानवी, भाई महेश ठाकुर, दीपिका ठाकुर, अंजना, संजीव, पूनम, निर्मल, सोनम, प्रवीण सहित शहर के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोग ने स्वर्गीय मनु वड़िंग को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। मनु वड़िंग जी ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਿਆਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਪੂਜਨੀय पंडित जी महाराज और दिव्या ज्योति जागृति संस्था वालों स्वामी सजनानंद जी साडे विच पहुंचे हैं। उन्हां दा भी बहुत दिल दी गहराइयां तो धन्नवाद करते हैं कि साडे विच पहुंचे हैं। और साडी भैणां जो जिन्हां ने कीर्तन दे विच कीर्तन के रूप दे विच मौत की जिहड़ी आ अटल सच्चाई दसी। असी इन्हां भैणां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। और साडे विच शहर दीआं प्रमुख शख्सियतां जो अज इस परिवार के नाल दुख वंडावन लई पहुंचियां ने और उन्होंने कुछ संस्थावां के शोक संदेश भी साडे विच पहुंचे ने। मैं उन्होंने सारिਆਂ की जानकारी दे रहा। आर्यो श्री मनु वड़िंग जी की अंतिम अरदास जुड़े साध संगत जी, बड़ा दुखदाई समा है। आम तौर पर दुख वेले जाइदा लेक्चर भी करीदा, धन्यवाद भी करीदा, उसदे बारे गल्लां भी करीदियां। पर अज कुछ ऐसा मन की अवस्था है कि ना शुरुआत हो रही थी, ना ये पता अंत क्या है। बहुत ही प्यारा सज्जन जिन्हें बड़े छोटे समय च बड़ी तरक्की की, तो एक खुशबू मांगू फैल गया तो सारे का मन उन्हें मोया, तो अचानक छड्ड के चले गया। उस दिन सारा दिन ही मेरे नाल सी जिस दिन मौत हुई। शाम को 7 बजे मेरे को गया कि कुड़ी का जन्मदिन है, अज असी जन्मदिन मनाना है। रात को जन्मदिन का केक कटिया। अज तक मतलब अपने आप को यकीन ही नहीं आ रहा कि हो क्या गया अपने नाल ते आप कित्थे बैठे, जिवें कोई लाल गुआच जाता धरती च। आप
ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਤੀ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ परमात्मा करे कि सम्मत सहा लिखिया मिलकर पावो ते देहो सज्जन सी सड़ियाँ जो कोई सहब हो गए। परमात्मा अपने चरणों च निवास बख्शे, पिछे परिवार सारा पाना मनने का बल बख्शे। जय श्री राम। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फगवाड़ा गोराया नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, नौजवानों की मौत, एक गंभीर घायल। अमृतसर ग्रामीण पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने विस्फोटक सामग्री की स्मगलिंग की कोशिश को किया नाकाम, 2 ग्रेनेड सहित एक आरोपी काबू। मोगा के जीरा रोड पर मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवानों ने मजदूरों पर चलाई अंधाधुंध गोलियां, गोली लगने से 2 मजदूर हुए गंभीर घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती है। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल टीवी।